Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Dear student, there are a lot of topic to discuss. Today we'll discuss about Shakespeare and one of the most prominent play by Shakespeare. And the name of this play is Hamlet by Shakespeare. We'll try to discuss characteristics as well as summary of this play. And then we'll discuss about Elizabethan age. We shall learn about the Tudor government. We'll learn about European Renaissance. We'll also learn about England, Renaissance in England. So there are a lot of topics to discuss. Yes. Excuse me, sir. Have we done with the history of English literature? History of No, English? the history of English literature have we done? I'm not understanding what are you saying. What do you mean to say? Sir, I am saying that you said we will discuss today Shakespeare, the plays of the Shakespeare. So I am asking that have we done with the history of English literature? Definitely, we are discussing one by one. We are at the moment we are in Renaissance age. We are going to discuss Renaissance age, and in Renaissance age we will discuss some prominent plays as well, so that you may have better idea. Maybe they ask you about some lines from Shakespeare play. They say that right, who spoke this dialogue? Frailty, thy name is woman. Who they may ask you. There is a providence in the fall of sparrow. So what will you answer? Whether it was spoken by Polonius, Claudius, or Laertes, or Ophelia, or like these dialogue, it's very prominent play. तो मैं कोशिश करूंगा जो प्रोमिनेंट प्ले हैं, क्योंकि बहुत प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा है शेक्सपियर के, उसमें जो प्रोमिनेंट है वो हम उनको डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ. तो उसके अलावा हम कोशिश करेंगे सिलेबस, अगर टाइम हमारे पास हुआ तो सिलेबस के भी हम डिस्कस करेंगे. प्रोमिनेंट जो है, हमें इंग्लिश से आते हैं ज़्यादा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ. लेट मी डिस्कस टुडे अबाउट रेनेसेंस एज. और रेनेसेंस एज कोई एक रेनेसेंस एज सिर्फ इंग्लैंड के अंदर तो नहीं आया था. रेनेसेंस एज कहाँ से? इटली से स्टार्ट हुआ. इटली से फिर वो फ्रांस में, और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड, और पूरे दुनिया में फैला. सो वी विल लर्न अबाउट दिस. I think that students are coming and we should start. Sumera, are you over here? I'm still waiting for one of student. Our student name is Javeria. I'm waiting for her. So dear student, these are the topic. Topic is we have the topic over here. This one. European Renaissance. We'll discuss about the European Renaissance, Elizabethan age, and prominent writers. The Renaissance in England and the main writers we shall discuss. And Shakespeare, I will give a special day for Shakespeare, because Shakespeare, he has written 139 plays and 154 sonnet. So I think this writer should be given a specific day. And today I will discuss biography of the Shakespeare, but I will not discuss his work. Later I'll be discussing his work, his play, his sonnet, and how he formed sonnet, and how he was writing, working as a playwright, producer, director, actors, and writers. Everything will be discussed. Today you will learn about these things. European Renaissance, how it was, how it was taken place, especially in European countries. What was the cause of this Renaissance movement? And after the Renaissance movement, what were the changes? I think all the development that England and like these European country they have done, or they have covered, that was all due to the Renaissance age. It was a Renaissance age that made them so, and they started making progress in different field of life, in philosophical, psychological, economical,
or educational or like these field, and they made progress, especially due to the Renaissance age. And the Renaissance, whole Renaissance was occurred in especially England, Europeans, and like these country. If you heard my previous lecture, in my previous lecture I discussed about the fall of the Constantinople's, fall of Byzantine Empire or Constantinople. I'm talking now European Renaissance. Then I'll move forward England Renaissance, especially talking about the England's Renaissance. So let's learn something about the European Renaissance, how it was. 1453. 1453. Please note it down. 1450. In my previous lecture, when especially Aisha, I attended my all lectures, and over there when you was attending lecture, I also discussed about the fall of the Constantinople. So fall of the Constantinople was a reason to move forward Renaissance movement. So Renaissance movement was especially that got a special pace due to this fall of the Constantinople. And what was the reason of this fall of the Constantinople? In 1453, Turkey invaded Constantinople. Turkey attacked on Constantinople. That was a Roman Empire, that was a Byzantine Empire. So that was a special empire, and that was backed by a lot of European countries, and ultimately they were invaded. They were falling, and ultimately Turkey that got over this, and they invaded and ultimately attacked. And the writers, they were over there, they were having the manuscript and the writing of the Cicero, Aristotle, Plato, and Aristophanes, like these ancient writers, Homer, Virgil, and all these writers and their manuscript they were having. So when Constantinople that was invaded, they all fled into various part of the Europe. So when that was attacked by the Turkey, they spread in various part of the Europe. Some went to England, some went to Germany, some went to the other part of the countries. So what were their main cause to move? They were moving in a way to have a special kind of movement, because they were having a manuscript of the writing of these ancient writers. They want to save it. So they just moved in the various part of the European countries, and they started doing effort over there. So what they did, some people went to from Constantinople, they went to Italy, some Germany, कुछ इटली चले गए, कुछ जर्मनी चले गए, कुछ इंग्लैंड चले गए. ज़्यादा चूंकि ये इटली नज़दीक था उनको, तो ज़्यादा लोग जो हैं वो इटली आ जाते हैं. इटली जब आते हैं तो इटली में ये एक मूवमेंट शुरू करते हैं, रेनेसेंस मूवमेंट. इटली में आपको पता है कि जो मूवमेंट है, इटालियन पोइट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे, तो इटालियन जो है उनका बहुत ज़्यादा हाथ है किसमें, इस वर्क में. तो इटालियन राइटर जैसे पेट्रार्क है, ठीक है, जैसे डांटे है, जैसे बोकाशियो है. सो दीज आर द इटालियन राइटर. इटली के अंदर इन्होंने वर्क शुरू कर दिया. ये सारे जो लोग वो कॉन्स्टेंटिनोपल से दौड़े हैं, तो एक टर्की में जाके इन्होंने पनाह ली. वहाँ पे इन्होंने वर्क किया. इन्होंने दे स्टार्टेड reinterpreting, rejuvenating, inculcation, reinterpretation, retranslation, or regeneration. They started regenerating the work of the Cicero, Plato, Horace,
previous ancient writer like Roman Greek writer, and especially Aristotle, Plato. So they started retranslating, reinterpreting, regenerating, reproducing the text, and they come up with the new outlook. तो एक नई आउटलुक के साथ एक एंटिकिटी, जो एंटीक वर्क था, एक ओल्ड एंशियंट वर्क था, उससे उन्होंने नई चीज़ निकाली। और चूंकि वो बड़ा ग्रैंड वर्क था तो उनसे उन्होंने नई चीज़ निकाली। और वो वर्क अगर आप मेडिवल एज देखें तो मेडिवल एज में आपको रोमन ग्रीक का वर्क नहीं मिलेगा, उनका अपना वर्क है। मेडिवल एज में हमने पढ़ा कि उसमें क्यों कौन कौन से प्ले लिखे जाते थे। 3 तरह के प्ले मशहूर थे, मोरालिटी प्ले और मैरिकल प्ले और मिस्टीरियस प्ले। अब ये जो प्ले थे, इन प्ले को परफॉर्म कौन करता था? रिलीजियस जो स्कॉलर थे वही करते थे, और उनके जो नुमाइंदे होते थे वो करते थे, और रोल भी वही मिलता था जो चर्च कहता था। चर्च जो है बड़ा डोमिनेट करता था। यानी इसमें क्या था, पूरी जो दुनिया थी वो चर्च सेंटर हो गई थी मिडीवल एज में। क्या थी? चर्च सेंटर के सब करैक्टर जो हैं वो चर्च के गिर्द घूमते हैं। इवन कि आपका लिटरेचर जो है, आपका कल्चर जो है, आपके करैक्टर्स जो हैं, ठीक है, वो सारे क्या थे? चर्च सेंटर होते हैं। प्ले जो हैं वो चर्च सेंटर होते हैं, और वो सेंट से रिलेटेड होते हैं। क्रिश्चियन सेंट्स जो हैं उनके मैरिकल से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें ह्यूमन तो डिस्कस नहीं होता था। तो इस तरह बहुत सारे राइटर्स थे। उनमें जो पहला राइटर है, जर्मनी के अंदर एक राइटर भी था, टीचर भी था, मंक भी था, स्कॉलर भी था। उसका नाम है, जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी एलिजाबेथन, और दूसरे वर्क की तरफ हम बाद में आएंगे। रेनेसेंस, ये रेनेसेंस यूरोप के अंदर आया कैसे है? यानी एक तो टर्की के अंदर बहुत सारे राइटर्स का जाना और वहाँ पे एक्सप्लोर करना, री एक्सप्लोर करना किसको? ग्रीको रोमन वर्क, ग्रीको रोमन की रिजुविनेटिंग, रीजनरेशन, री इंटरप्रेशन, री ट्रांसलेशन, रीबर्थ और रिक्रिएशन, ये सारा प्रोसेस जो है ये टर्की के अंदर हुआ। ग्रीको रोमन लिटरेचर को दोबारा से देखा गया और उसके अंदर बड़ा वर्क था, ग्रीक एंड रोम। इस वर्क का रिवाइव होना ये टर्की के अंदर हो रहा था। टर्की अब हब बन गया। लोग जो टर्की जो है, चूँकि वो बहुत सारे आइलैंड जो उससे रिलेटेड हैं, बहुत सारी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज उससे रिलेटेड हैं, तो वो हब बन गई। और लोग अब इंग्लैंड से और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से टर्की आके इल्म हासिल करते, इस तरह के अलूम हासिल करते। और मैंने राइटर भी बताए, उनमें जो मशहूर राइटर्स थे मैंने उसमें एक नाम लिया, डांटे, बोकाशियो, पेट्रार्क, ये सारे राइटर्स वर्क कर रहे थे। यूरोपियन रेनेसेंस में एक नाम है जर्मनी के, मैंने कहा कुछ जर्मनी में भी चले गए। तो जर्मनी के अंदर भी अब चर्च को चैलेंज हो रहा था। जब मेडिवल एज ख़त्म होती है तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है, दुनिया का सेंटर जो है वो है इंसान। लोग ह्यूमनिज्म के ऊपर वर्क करने लग गए। जैसे पेट्रार्क जो है ह्यूमनिस्ट समझा जाता है, ह्यूमनिज्म का बानी उसे कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म है, वो भी ह्यूमनिज्म पे काम कर रहा था। दूसरे राइटर भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैन सेंटर अब चर्च सेंटर से, चूँकि मेडिवल एज जो थी वो चर्च सेंटर थी, जो लिखा जाता था लिटरेचर वो भी क्या होता था, वो चर्च सेंटर होता था। करैक्टर चर्च सेंटर, सेंट जो हैं वो चर्च के होते, करैक्टर उनके होते, लाइफ उनकी दिखाई जाती, मैरी, मदर मैरी, सेंट, क्राइस्ट और सुपरनेचुरल एलिमेंट, ये चीज़ें डिस्कस होती। यानी उसमें कोई भी मैन सेंटर चीज़ नहीं थी। लेकिन आप अगर मेडिवल एज देखें तो मेडिवल एज में सारा मज़हब है, लेकिन उससे आप ग्रीक रोमन एज में चले जाएं, अरिस्टोटल, प्लेटो और उनका वर्क देखें तो वो वर्क क्या था? वो वर्क एक अच्छा वर्क था, एक अच्छा गोल्डन पीरियड था वो भी उस वक़्त का। अब उस वक़्त को, उसके राइटर को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। और जर्मनी के अंदर एक राइटर है जो मंक है, जो स्कॉलर भी है, ये चर्चमैन था, चर्च से रिलेटेड था। लेकिन जब इसने चर्च के लोगों को देखा कि चर्च के लोग किस तरह से इस्तेहसाल कर रहे हैं लोगों का, उसका नाम लिख लें, मार्टिन लूथर।
मार्टिन लूथर जो है ये बड़ा वाइस मैन था, बड़ा एक क्लर्जी मैन था, एक मंक था, एक स्कॉलर था, एक टीचर था, और साथ साथ मजहबी अलूम को जानता था. लेकिन ही वॉज वेरी वाइस पर्सन, ही वॉज अ विटी पर्सन, ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन. ही disliked the people like the churchmen. They were dealing with the common people, they were exploiting them, they were using say just their money, they were exploiting their rights and taking away their money and just robbing and looting them, and he disliked all these things. He left the church and he joined university, Wittenberg University. उसने विटनबर्ग यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया. नाम नोट कर लें, मार्टिन लूथर. ये एक रिफाइनमेंट लेकर आया चर्च के अंदर, मार्टिन लूथर. मार्टिन लूथर जो है ये चर्च विटनबर्ग यूनिवर्सिटी. ये मंक था, स्कॉलर था, ठीक है, लिख लें, टीचर था, चर्चमैन भी था, चर्च में रहा, चर्च के साथ काम करता रहा, चर्च वालों के साथ. इसने बड़ा उनको ऑब्जर्व किया कि किस तरह से ये लूट रहे हैं लोगों को. इसने उनको चैलेंज कर दिया, चर्च की अथॉरिटी को. यू आर नॉट गुड पीपल, यू आर जस्ट रॉबिंग पीपल. द वे यू आर ट्रीटिंग विद पीपल, इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज दे वर माफिया एंड दे वर रॉबिंग पीपल. दे हैव देयर ओन स्टेट. वो तो ऐसे लगता था कि अगर जैसे स्टेट के अंदर स्टेट उनकी अपनी एम्पायर बनी हुई है. तो उसने ये सारी चीज़ों को नोट किया. मार्टिन लूथर ने उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया. उसने कहा कि ट्रस्ट दाई सेल्फ, उसका मेन कॉल जो है आज आ सकता है आपको, ट्रस्ट दाई सेल्फ. उसने कहा अपने आप पे ट्रस्ट करो यार, क्या कर रहे हो, क्यों इनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो. सो यू मस्ट फाइंड व्हाट इज इन द टेक्स्ट, व्हाट इज इन द बुक, व्हाट इज इन द बाइबल, व्हाट बाइबल से अबाउट द जीसस क्राइस्ट, व्हाट बाइबल से अबाउट द पीपल, हाउ टू डील विद द पीपल. जीसस क्राइस्ट ने तो ये कहा था कि कोई अगर आपके राइट साइड पे स्लैप करता है तो उसको बायां भी आगे कर. यानी आपके कोई एक साइड पे अगर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो, ताकि, यानी ये दैट वाज अ मैसेज ऑफ पीस. उसने कहा ट्रस्ट thyself, रीड बुक, फाइंड व्हाट इज बुक सेइंग टू यू, व्हाई आर यू blindly following these priests, these fake churchmen. इन चर्चमैनों को क्यों फॉलो कर रहे हो. उसने उनको चैलेंज कर दिया. और वो बनाना चाहता था क्या, वो बनाना चाहता था मैन सेंटर्ड. पूरे मज़हब को क्या बनाना चाह रहा है कि मज़हब जो है इंसान के लिए ये सब कुछ बनाया. उसने कहा कि इंसान जो है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है, तो ये सब कुछ जो है उसके लिए बना है. उसने कहा ट्रस्ट दाई सेल्फ. पहला तो उसका ये कॉल था. These churchmen are fake, they are just exploiting people. ये लोगों को जस्ट यूज कर रहे हैं एंड डूइंग नथिंग. और लोगों के पैसे जो हैं वो लूट रहे हैं. उसने उनको चैलेंज किया. तो क्या वो चाहता था, क्या उसकी मेन उसकी क्या थी रिक्वायरमेंट कि टैक्स बेट. मार्टिन लूथर के जो पॉइंट थे वो लिख लें. मंक था, टीचर था, स्कॉलर था. विटनबर्ग यूनिवर्सिटी जो है जर्मनी की, ये इसने ज्वाइन कर ली, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी. और ये बड़ा एम्बिशियस पर्सन था. ही वांट्स टू हैव रेवोल्यूशन एंड ही ब्रॉट रेवोल्यूशन ऑल ओवर अक्रॉस द यूरोप. पीपल स्टार्टेड हियरिंग हिज वॉइस. He says that these churchmen are just robbing people, they are giving nothing, and see what is in the text, what is in the Bible. इसने कहा कि टैक्स पढ़ो, ठीक है, उसके टैक्स के मानी जाओ, बाइबल पढ़ो, ठीक है. गॉड जो है, गॉड का मैसेज पढ़ो, गॉड्स मैसेज, डायरेक्ट गॉड मैसेज पढ़ो कि गॉड क्या कहता है. जैसे हमें नहीं लोग कहते हैं यार कुरान पाक पढ़ो, तो इसी तरह टैक्स बेस बनाओ और मैन बेस बना दिया. मज़हब को क्या बनाया उसने, मैन बेस. वो कहता है कि मैन बेस इंसान के लिए बनाना, तो इंसान के लिए फिर इंसान को इस्तेमाल कर रहे हैं ये. और उसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं वो भी मैं आपको लिखवाता हूँ, इससे रिलेटेड वो नोट कर लें.
ये एक आपने मेन पॉइंट 1453 में जो अटैक हुआ था, इटली ने जो अटैक किया था, वो याद रखिएगा। मेन पॉइंट इसमें ये है। बाकी मार्टिन लूथर का जो कॉल है, ट्रस्ट थायसेल्फ। बाकी मेडिवल एज का मैंने बताया कि मेडिवल एज में क्या था, मैन चर्च सेंटर था, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, मैन सेंटर। अब दुनिया किस तरफ जा रही है, मैन सेंटर होने जा रही है। नो आई विल टेल यू अबाउट द ह्यूमनिज्म। ये तो था जर्मनी के अंदर वर्क हो रहा है, इटली के अंदर भी पोइट्स जो हैं वर्क कर रहे थे, और जर्मनी के अंदर भी मार्टिन लूथर जैसे दे आर टॉकिंग अबाउट द पीपल शुड मेक देयर रिलीजन मैन सेंटर रादर देन चर्च सेंटर, बिकॉज चर्च इज जस्ट मैनिपुलेटिंग देम एंड इट इज कंट्रोलिंग देम एंड गिविंग देम नथिंग, एंड वट एवर दे अर्न दे टेक अवे देयर मनी, एंड आफ्टर दैट पीपल आर सफरिंग। और ये अपनी एम्पायर बनाई हुई है चर्च ने अपनी, और इसको उसने चैलेंज कर दिया। तो अब लोग जो हैं वो किस तरफ जा रहे थे, कैथोलिक से, कैथोलिक जो उनका पुराना था मज़हब, उससे डेवलपमेंट हो रही है प्रोटेस्टेंट की तरफ। मैंने आपको बताया था कि क्रिश्चियनिटी के दो मेजर जो हैं वो सेक्ट हैं, एक प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक है। कैथोलिक जो है ये रोमन कैथोलिक से आए हैं, जो पहले सबसे पहले लेकर आए थे क्रिश्चियनिटी को। और वो किससे इन्फ्लुएंस से, ये स्टैच्यू से और पिक्चर से और तस्वीरें बनाते और इस तरह की। चर्च के अंदर भी उन्होंने वही पुराना जो सिस्टम है अभी भी उनका, जैसे हमारे जो सेक्ट हैं इनके भी आपस में सेक्ट हैं, जैसे हमारे सुन्नी हैं, वहाबी हैं, इस तरह। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री जो हैं वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीज़ों को फाइंड करते हैं। दे आर इंस्टीट्यूटेड, देयर माइंड आर इंस्टीट्यूटेड बाय द इंस्टीट्यूशंस। They are not able to think themselves. He says that trust thyself and find truth through text-based knowledge. So find truth through Bible, trust yourself, develop your thoughts, and that all developed, such kind of things were developing in European country. European country जो हैं अब कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट की तरफ जा रहे थे, और आज भी देखा जाए तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक्स जो हैं वो उनका जो असर है वो ख़त्म हो चुका है। एक राइटर था और इटली के अंदर, नाम लिखें पिको डेला। पिको डेला, देखिए इनके नाम जो है थोड़े से मुश्किल हैं। पिको डेला, पिको डेला जो है इसने लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन। इसने बुक लिखी है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन। ये नाम याद रखें, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन लिखी है, और आपने इसका याद रखना है कि इसके अंदर आपको इसका थीम क्या लग रहा है, यानी इसने किस पे वर्क किया, ह्यूमनिज्म पे। इसने बताया कि इंसान को, ये चूंकि सब कुछ जो है इंसान के लिए बना है तो मैन सेंटर्ड होना चाहिए। इसने ह्यूमनिज्म के ऊपर वर्क किया, एंड ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन थॉट, ह्यूमन स्किल, ह्यूमन पोटेंशियल शुड बी एक्सप्लोर्ड एंड एवेल्यूएटेड। इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ मैन जैसे कि नाम ही बता रहा है। तो पिको डेला ने किसके ऊपर जोर दिया कि ह्यूमन माइंड इज डिवाइन। उसने कहा कि पहले तो वो मैन बेस लिखता है, तो इसके अंदर क्या क्या है थीम, कि मैन का जो माइंड है, मैन्स माइंड इज डिवाइन, कि डिवाइन है। देखिए गॉड ने कैसा माइंड बनाया है, तो इसकी एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए ना। कहते हैं इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इसकी पोटेंशियल को देखना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्स को कहता देखो, अगर पूरी यूनिवर्स में देखा जाए तो सारी यूनिवर्स में, सारी कायनात के अंदर इंसान को, ये सारी कायनात जो है डेडिकेट की गई है इंसान के लिए। इंसान जो है ओनली ह्यूमन बीइंग है जो रैशनल थॉट रखता है। उसने कहा कि मैन शुड बी गिवन वैल्यू। इसने मैन सेंटर पे वर्क किया, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमनिज्म पे वर्क किया। अब लिटरेचर, कल्चर, आर्ट, आप देख लें, लिटरेचर, कल्चर, आर्ट और जितने भी पेंटिंग और ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के साथ एक और चीज़ चलने लगी, ह्यूमनिज्म। इन जैसे राइटर की वजह से
दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द चर्च। अब चर्च मैन जो है वो हर जगह चैलेंज हो रहे हैं। तो अब आज भी देखें तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो हैं वो प्रोटेस्टेंट हैं, रोमन कैथोलिक मज़हब नहीं है वहाँ पे। रोमन प्रोटेस्टेंट जो है एक रिफाइंड एक और ही उनका कीदा है। अब साथ साथ एक और चीज़ आ गई, ये तो हो गई वैल्यूज़ जो है वो रिफॉर्मेशन इन चर्च मैंने डिस्कस कर दी। तकरीबन यूरोप के अंदर रिफॉर्मेशन इन चर्च हो गई। अब आजकल देखें रेफॉर्मेशन इन चर्च, ये तो आ गई। दूसरी जो यूरोप के अंदर प्रोग्रेस हुई इन ग्रीको रोमन्स और पुराने ओल्ड एंशियंट लिटरेचर को री इंटरप्रिटेशन, री एक्सप्लोरेशन एंड रीजनरेटिंग, और ये सारा प्रोसेस जब हुआ तो साइंटिस्ट जो थे वो भी पैदा हुए। जो आपने गैलीलियो गैलीली पढ़ा होगा, गैलीलियो गैलीली बाय बर्टोल्ड ब्रैकेट। ही सेज दैट लोगों का बिलीव है, पुराना बिलीव है कि लोगों का बिलीव है कि जो ज़मीन जो है ये जो है ये एक साकन है और सूरज जो है उसके गिर्द घूमता है। चूँकि सूरज जो है वो सामने नज़र आता है तो वो इधर से उधर चला जाता है, तो लोगों ने कहा कि ये उसके गिर्द घूमता है। ये पुराना बिलीव था। और बाइबल के अंदर लिखा है, आवर लॉर्ड आवर गॉड हैज़ फिक्स द अर्थ एंड इट नेवर शेक। इस अर्थ को हमारे लॉर्ड ने इसको एक जगह पे फिक्स कर दिया, ये अपनी जगह से नहीं हिलती। यानी वो उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह देते हैं कि जो भी ये कहता साइंसदान कि ये ज़मीन जो है वो हरकत करती है, वो उसको बाइबल का रेफरेंस देते, कहता है बाइबल को चैलेंज कर रहे हो और उसका ट्रायल करते, या उसको बेहेडेड कर दिया जाता है या जिंदा जला दिया जाए। ब्रूनो जो है उसको जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो नामी एक साइंटिस्ट था, उसे जिंदा जला दिया गया। कोपरनिकस को मारा गया। कोपरनिकस का आइडिया, उसका ट्रायल हुआ, ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। गैलीलियो गैलीली को उन्होंने पकड़ लिया और उसका भी ट्रायल किया। आपको पता ही है, हमने गैलीलियो गैलीली पढ़ा। अब ये साइंस गैलीलियो गैलीली भी जो है ये भी आ चुका है। गैलीलियो गैलीली भी चर्च को, वहाँ रोमन जो कैथोलिक चर्च है उसको चैलेंज करता हुआ नजर आता है, क्योंकि साइंस भी उस वक्त फ्लॉरिश हो रही थी रोमन कैथोलिक। ये भी यूरोपियन रेनेसेंस के अंदर हुआ। मैंने बताया कि 14th सेंचुरी में रेनेसेंस जो है यूरोप के अंदर स्टार्ट हो गया था, स्पेशली इटली से। ठीक है, उसके बाद ये ट्रैवल करता हुआ दूसरे यूरोपियन कंट्री को इसमें अपनी लपेट में लिया। और ये एक थॉट थी, और थॉट के साथ क्या थी, ह्यूमनिज्म चल रही थी। यानी जो थॉट थी प्रोग्रेस की, डेवलपमेंट की, मैन सेंटर्ड की, साइंटिफिक। तो रेफॉर्मेशन, अब पहले तो हमने चर्च में पढ़ी, अब रेफॉर्मेशन साइंस के अंदर, अब साइंस के अंदर डेवलपमेंट इन द साइंस। तो साइंटिफिक एटीट्यूड, डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक वर्क, इसने भी चर्च का जो है मिडिवल थॉट को तोड़ा। तो अब डेवलपमेंट इन साइंस, डेवलपमेंट इन साइंस ये भी आ गई, और इसमें गैलीलियो आ गया, कोपरनिकस जो है, ठीक है। और गैलीलियो क्योंकि इसका वर्क आपको पता है जर्मनी पहुंचा और वहाँ से प्रिंट हुआ, फिर उसकी कापियाँ बन गई। वो एंड्रिया जो उसका स्टूडेंट है, जब उसे अरेस्ट कर लेते हैं तो गैलीलियो गैलीली अपने आप को कहता है कि मैं भाई नहीं लिखता, मुझसे गलती हो गई, मैं अपना रिकेंट करता हूँ। ये वाकई ज़मीन जो है वो एक जगह पे खड़ी है और सूरज जो है उसके गिर्द घूमता है। यानी उसने रिकेंट कर लिया था, लेकिन रिकेंट करते हुए अंदर ही वो लिखता रहा। उसका स्टूडेंट जो है एंड्रिया जो है वो वहाँ पे आता है और वो उसके साथ मुलाकात करता है। एंड्रिया को वो बुक दे देता है और बुक जो है वो फिर दूसरे कंट्री में पहुँच जाती है, वहाँ से पब्लिश हो जाती है और फिर पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब ये भी एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है, डेवलपमेंट इन साइंस जो है, उन्होंने वो प्रीस्ट की, वो कार्डिनल और उनके चीफ और रोमन कैथोलिक बड़े बड़े प्रीस्ट जो हैं वो 2+2 को, अब 2+2 को वो सामने देखकर तो नहीं कर सकते थे डिनाई। यानी 2+2 = 4 होता है, अब इसको 5 तो नहीं कह सकते थे। तो इसलिए फिर उनको बहुत सारी चीज़ें जो है माननी पड़ी। अल्टीमेटली जो है नॉलेज के सामने, बड़ी नॉलेज इज़ अ पावर जैसे होता है, तो नॉलेज के सामने उनको झुकना पड़ा। एक और साइंटिस्ट है, उसका नाम भी लिख लें, हार्वी, HAR। इसने ब्लड सर्कुलेशन जो है दरियाफ्त किया था। ये भी रेनेसांस एज का।
ब्लड सर्कुलेशन अगर आ जाए, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, तो हार्वी, HARVEY। हार्वी का जो कंसेप्ट था गैलीलियो गैलीली ने इंट्रोड्यूस किया कि ज़मीन जो है वो घूमती है सूरज के मूवमेंट में, यानी रोटेट करती है, और सन जो है वो अपनी जगह पे साकन खड़ा है। जबकि उससे पहले जो साइंटिफिक मेडिवल बिलीव था, वो बिलीव क्या था? वो बिलीव था कि ज़मीन जो है फिक्स्ड है, आवर लॉर्ड आवर गॉड हैज़ फिक्स्ड इट एंड नेवर शेक। जो इसको चैलेंज करता, चर्च उसे पकड़ के उसका ट्रायल करता और अल्टीमेटली उसको सज़ा होती। और जो मेन जो साइंटिस्ट थे, एक मैं और साइंटिस्ट का नाम लेने लगा हूँ, शायद आपने उसका नाम सुना हो। एक तो है गैलीलियो, एक रेनेसांस एज का कोई और साइंटिस्ट बताएं जो प्रोज राइटर भी है। बेकन, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन भी साइंटिस्ट था। सर फ्रांसिस बेकन क्या था? ये भी आ गया था। सर फ्रांसिस गैलीलियो, कोपरनिकस और इंग्लैंड के अंदर कौन था? फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने क्या किया? इंडक्टिव मेथड दिया। इंडक्टिव, उसके पहले क्या था? डिडक्टिव मेथड था। इसने इंडक्टिव साइंटिफिक मेथड दिया, इंडक्टिव मेथड लेकर आया। ठीक है, तो ये जो सारे साइंटिस्ट हैं, दे पुट टुगेदर, दे हैव गिवन अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू आउटलुक, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एंड दैट वाज अ चैलेंजिंग a kind of scene for the church। और चर्च के लिए ये एक चैलेंजिंग सीन था। तो मैं नाम फिर लिख देता हूँ। ये स्टार्ट हुआ कि एक तो रेफर्मेशन इन द चर्च, उसका नाम था मार्टिन लूथर, जो रेफर्मेशन लेकर आया चर्च के अंदर। इट वॉज रिलेटेड टू church and he has brought, and he belongs to Germany, and he has brought changes in the church। ये चर्च में लेकर आया था चेंज। नाम लिख लें वन बाय वन, स्नैपशॉट ले लिया करें। दूसरा पिको डेला, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन लिखी इसने, पिको डेला। इसने बुक कौन सी लिखी? इंपॉर्टेंस ऑफ, मेक श्योर वी आर डिस्कसिंग यूरोपियन रेनेसेंस, उसके बाद मैं इंग्लैंड का रेनेसेंस जो है उधर लेके जाऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन से हमें पता चलता है ये ह्यूमनिज्म से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड थी बुक? ह्यूमनिज्म से। और कौन था? हार्वी। हार्वी ने क्या इंट्रोड्यूस, ये एक साइंटिस्ट था, और इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। मुझे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरा माउस का इशू है। आप कोशिश करें कि आप साफ लिख लें। चौथा गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या दरियाफ्त किया? उससे पहले जो निज़ाम चल रहा था कि सूरज जो है चूँकि बड़ा है, सामने नज़र भी आता है, और ये मूवमेंट करता है, इधर से मशरक़ से और मगरब तक चला जाता है, ये मूवमेंट करता है, ज़मीन खड़ी है। आवर लॉर्ड आवर गॉड हैज़ फिक्स दिस अर्थ एंड इट नेवर शेक। ये बिलीव था मिडिवल एज, रोमन कैथोलिक और जितने बड़े बड़े प्रीस्ट और कार्डिनल और चीफ, इन सब का बिलीव था कि ज़मीन जो है अपनी जगह पे साकन है और ये एक जगह से मूवमेंट नहीं करती। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने उसको चैलेंज किया। उससे पहले जो कोपरनिकस का आइडिया था, उसने इससे पहले ये आइडिया दे दिया था, लेकिन इसने उस आइडिया को इंडोर्स करके पुश फॉरवर्ड किया। इसे बहुत सारे लोग जो है रोकते हैं, लेकिन ये मूव फॉरवर्ड करता रहता है। अल्टीमेटली वो इसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद ये रिकेंट करता है और अंदर बैठ के एक बुक लिख देता है और अपने स्टूडेंट के जरिए जर्मनी पहुंचा देता है। वहाँ से प्रिंटिंग प्रेस और इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं, और उन्होंने इसको दूर से दूर पहुंचा दिया, इसके आइडियाज़ को। उसके अलावा उस वक्त मौजूद थे, कोपरनिकस ने भी आइडिया दिया था। ये सारे चैलेंज किसको कर रहे हैं? ओल्ड बिलीव को कर रहे हैं। और उसके बाद फ्रांसिस बेकन, ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं। ये ओवरऑल जो यूरोपियन फ्रांसिस बेकन, मैंने बता दिया कि किस तरह से एक चेंजिंग आई। आज हम इनको देखने कैसे जानते हैं, तो इसी तरह ये उस वक्त भी बड़े प्रोमिनेंट थे। जैसे हमने बुक पढ़ी गैलीलियो गैलीली, तो उसमें वो कहता है कि गैलीलियो गैलीली जो है वो पूरे यूरोपियन कंट्री में बड़ा प्रोमिनेंट है। लोग इसको चाहते हैं कि ये आके यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे। तो गैलीलियो गैलीली अपने वक्त में भी बड़ा प्रोमिनेंट था कि कोई साइंटिस्ट है जो इटली के अंदर पिसा नामी प्लेस में वहाँ रहता है और बड़ा प्रोमिनेंट है।
तो कौन कौन सी चीज़ें, अब ये फ़िलासफ़ी एक तो आ गई ह्यूमनिज़्म यूरोप के अंदर, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन सेंटर्ड, और रिलीजन में भी मैन सेंटर्ड। साइंस जो है ये भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में मैंने आपको बता दिया, ये सारे रेनेसेंस एज में हुए हैं। रिलीजन में भी ये मेन जो पिलर हैं सोसाइटी की, ये सारे जो हैं फ़िलासफ़र जो हैं वो भी मैन सेंटर्ड वर्क कर रहे हैं। साइंस जो है मैन सेंटर पहले ही होती है, ह्यूमन वैल्यू को एक्सप्लोर करती है, ये भी ह्यूमंस को एक्सप्लोर करती है। और मेडिकल फील्ड में भी तरक्की हो चुकी है। रिलीजन जो है उसको भी मार्टिन लूथर कह रहा है कि वी शुड फाइंड द टेक्स्ट एंड फाइंड द वैल्यूज़ फॉर द ह्यूमन बीइंग। अब सारी चीज़ें जो हैं वर्क किसके लिए कर रही हैं, ह्यूमन बीइंग की। ओवरऑल मैंने इसकी हेडिंग बनाई है रेफर्मेशन इन रिलीजन। और इसका मेन जो है करने वाला कौन है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था, स्कॉलर था, मंक था, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता रहा, और इसने चैलेंज कर दिया कि आप लोग जो लूट रहे हैं, जितने भी रिलीजियस चर्चमैन थे उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। दे आर हैविंग देयर ओन empire within empire, so they must be discarded because they are just robbing the people. We find knowledge through text based, through Bible. What is written in the Bible? What is the God's message? What is the God's message? God's message देखा जाए, ह्यूमनिज्म इन लिटरेचर। ह्यूमनिज्म जो है वो आर्ट में आ गया, हर फॉर्म में। और साइंस इन थिंकिंग, साइंस जो है वो थिंकिंग में आ गई। तो ये